نگراں حکومت اور عسکری قیادت کی کوششوں کا ثمر، سرمایہ کا اعتماد بحال۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ ہر روز نیا ریکارڈ بنانے لگی۔ کاروبار کے آغاز میں ہی پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی، 100 انڈیکس میں 1000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ دوران ٹریڈنگ 100 انڈیکس 55,000 کی نفسیاتی حد عبور کر گیا۔ اکتوبر 2023 میں ترسیلات زر کی مد میں 2.5 ارب ڈالر کی رقم آئی۔ مالی سال 2024 کے پہلے 4 مہینوں کے دوران ترسیلات زر کی مد میں 8.8 ارب ڈالر کی رقم آئی۔ اکتوبر 2023 کے دوران ترسیلات زر زیادہ تر سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، برطانیہ اور ریاستہائے متحدہ امریکہ سے موصول ہوئیں۔ فلسطین کی صورتحال پر اسلامی تعاون تنظیم کا ہنگامی سربراہی اجلاس کل ریاض میں ہو رہا ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ اسلامی ممالک کے سربراہان اجلاس میں غزہ میں جنگ بندی اور متاثرین کے لیے انسانی امداد کی فراہمی کے لیے آواز اٹھائیں گے۔ غزہ میں صہیونی بربریت جاری۔ اسرائیلی فورسز نے اسپتالوں، رہائشی علاقوں اور پناہ گزین کیمپس کو ہدف بنا لیا۔ القدس اور غزہ فرینڈشپ اسپتال کے اطراف میں وحشیانہ بمباری۔ الشفا اسپتال پر حملے میں 6 افراد شہید۔ 24 گھنٹے میں شہداء کی تعداد 243 ہو گئی۔ شہداء کی مجموعی تعداد 10,800 سے تجاوز کر گئی۔ اسرائیل کا مخصوص علاقوں میں 4 گھنٹے کے لیے جنگ میں وقفے پر اتفاق۔ پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں سینٹ اجلاس جاری۔ چیئرمین صادق سنجرانی اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں۔ اجلاس میں غزہ میں اسرائیلی جارحیت اور ملکی، معاشی اور سیاسی صورتحال پر بحث۔ اجلاس کے 5 نکاتی ایجنڈے میں وقفہ سوالات بھی ایجنڈے کا حصہ۔ ملک کے تاریخی ورثے کی حفاظت ترجیحات میں ہے۔ نوجوانوں کو مثبت سرگرمیاں فراہم کریں گے۔ قومی ورثے کی حفاظت کے لیے صوبائی حکومتوں کے ساتھ کام کریں گے۔ علامہ اقبال پر پاک ایران تعاون میں فلم بنائی جائے گی۔ قائد اعظم کے افکار کی ترویج کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ نگراں وفاقی وزیر جمال شاہ کی کراچی میں مزار قائد پر حاضری کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا سالانہ عالمی تبلیغی اجتماع رائیونڈ کا دورہ۔ تبلیغی جماعت کے علماء اکرام اور اکابرین سے ملاقات۔ اجتماع کے انتظامات سے متعلق امور پر بات چیت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے سالانہ عالمی تبلیغی اجتماع رائیونڈ کے انتظامات اور فراہم کردہ سہولتوں کا جائزہ لیا۔ انتظامیہ کو انتظامات کے حوالے سے ضروری ہدایات۔ غیر قانونی رہائش پذیر افغان باشندوں کی باعزت واپسی حکومت پاکستان کی اولین ترجیح۔ تورخم اور چمن بارڈر کے راستے افغان شہریوں کی اپنے وطن واپسی کا سلسلہ جاری۔ گزشتہ روز 654 مزید خاندان افغانستان واپس لوٹ گئے۔ اپنے ملک واپس جانے والے افغان باشندوں کی مجموعی تعداد 2,10,793 ہو گئی۔ ملکی سالمیت اور معاشی استحکام کی خاطر سخت اقدامات۔ حکومت اور عسکری قیادت کی ہدایت پر بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ 29 اکتوبر سے 5 نومبر کے دوران مزید 3 ارب 42 کروڑ روپے وصول، 336 سے زائد افراد گرفتار۔ 1 ستمبر سے جاری کارروائیوں میں چوروں اور نادہندگان سے مجموعی طور پر 36 ارب روپے سے زائد کا جرمانہ وصول کیا جا چکا ہے۔ شمالی وزیرستان کے مکینوں کو گھر کی دہلیز پر معیاری اور ضروری طبی سہولیات کی فراہمی۔ پاک فوج کے تعاون سے 4 موبائل ہیلتھ یونٹس قائم۔ 400 سے زائد مریضوں کا معائنہ۔ ہیلتھ یونٹس لیب ٹیسٹ سسٹم، ECG اور الٹرا ساؤنڈ کی سہولت سے لیس۔ اہل علاقہ اور نمائندین کا پاک فوج اور MCPL کے مشکور۔ بھارتی فلموں میں فن کے نام پر نفرت کا کاروبار۔ مودی دور میں بالی ووڈ میں مسلمان مخالف فلموں کی بھرمار۔ کشمیر فائلز، کیرالا سٹوری اور لپسٹک انڈر مائی برقع سمیت 37 مسلمان مخالف فلمیں نشر۔ رواں سال بھی گودرا، مشن مجنو اور 72 حوریں جیسی 6 مسلمان مخالف فلمیں ریلیز۔ 2024 کے انتخابات سے قبل مزید 20 فلموں کی ریلیز متوقع۔
اسلام آباد ہزارہ ڈویژن جنوبی خیبر پختونخوا کشمیر اور گلگت بلتستان کے بعض علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ تیز بارش اور یالہ باری، مری، کاغان، ناران سمیت سیاحتی مقامات پر برف باری سے بابوسر ٹاپ ٹریفک کے لیے بند۔ ملک کے بالائی علاقوں میں مزید بارش اور پہاڑوں پر برف باری متوقع، میدانی علاقوں میں دھند پڑنے کا امکان۔ اور سعودی دارالحکومت ریاض میں 5 روزہ فوڈ کلچر فیسٹیول کا آغاز۔ پاکستان سمیت 35 سے زائد ممالک نے خوش ذائقہ کھانوں کے سٹالز لگا لیے۔ فوڈ کلچر فیسٹیول کی بدولت ملکی ثقافت اور کھانوں کو متعارف کروانے کا بہترین موقع ملتا ہے۔ پاکستانی سٹال سے حاصل ہونے والی رقم فلسطینی عوام کے لیے قائم فنڈ میں جمع کروائی جائے گی۔ پاکستانی سفیر۔ السلام علیکم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر خبرنامے میں میں ہوں آپ کے ساتھ کاشف رضا اور میں ہوں نازیہ خان۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، تفصیلات کی جانب بڑھیں گے۔ نگراں حکومت اور عسکری قیادت کی کاوشوں کے ثمرات مارکیٹ پر نظر آنا شروع ہو گئے ہیں، جس سے سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہو رہا ہے۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ ہر روز نیا ریکارڈ بنانے لگی ہے۔ کاروبار کے آغاز میں ہی پاکستان سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ 100 انڈیکس میں 1000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ہو گیا ہے۔ دوران ٹریڈنگ 100 انڈیکس 55,000 کی نفسیاتی حد عبور کر گیا۔ نگراں حکومت اور عسکری قیادت کی کوششوں کے ثمرات مارکیٹ پر نظر آ رہے ہیں، جس سے سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہو رہا ہے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ ہر روز نیا ریکارڈ بنانے لگی ہے۔ کاروبار کے آغاز میں ہی پاکستان سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ 100 انڈیکس میں 1000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ہو گیا ہے۔ دوران ٹریڈنگ 100 انڈیکس 55,000 کی نفسیاتی حد عبور کر گیا ہے۔ اچھی خبر، 100 انڈیکس میں 1000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ دوران ٹریڈنگ 100 انڈیکس 55,000 کی نفسیاتی حد کو عبور کر چکا ہے۔ اسی حوالے سے مزید جان لیتے ہیں، کراچی سے ہمارے نمائندہ ضمیر عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ضمیر، اچھی خبریں آنے کا سلسلہ جاری ہے، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، حکومت کی جو پالیسیز ہیں، خاص طور نگراں حکومت کی اور جو عسکری قیادت ہے، ان کے ساتھ جو کمبائنلی انہوں نے ایفرٹس کیے ہیں، خاص کر کے جو کرنسی اسمگلنگ اور ہورڈنگ کے خلاف، اور دوسرا جو پاور سیکٹر میں بجلی چوری کے حوالے سے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں، کریک ڈاؤن شروع کیے گئے تھے، اس کے بہت مثبت نتائج ملنا شروع ہوئے ہمیں۔ خاص کر کے کہ جو ڈالر اس وقت 326 اور 307 پہ پہنچ چکا تھا، وہ بعد اب جو ہے وہ تقریباً 286 پہ پہنچ چکا ہے۔ تو آپ سوچیں، امیجن کریں کہ جب یہ ڈالر کے ریٹ بہت بڑھ جاتے ہیں تو ہمارے اوپر جو واجب الادا قرضے ہیں، ان کے حجم میں بھی ہزاروں ارب روپے کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ایک اور جو مین فیکٹر وہ یہ ہے کہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کا معاہدہ ہوا تھا، اس کے بعد جو انہوں نے شرائط رکھی تھی، اور اب آئی ایم ایف کا ڈیلیگیشن اس وقت اسلام آباد میں حکومتی ٹیم سے مذاکرات کر رہا ہے، تو اس میں چیک کیا جا رہا ہے کہ جو کمپلائنس ہے حکومت پاکستان کی، وہ کس حد تک بہتر ہے۔ تو ذرائع یہی بتاتے ہیں کہ جو کمپلائنس ہے اس کے اوپر کافی اعتماد کا اظہار انہوں نے کیا ہے، اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ آئی ایم ایف پاکستان کے ساتھ تعاون جاری رکھے گا۔ اس کا یہی امپیکٹ بنتا ہے کہ ہمیں جو 70 کروڑ ڈالر کی قسط ملنی تھی، اب کبھی امکان ہے کہ ان مذاکرات کے ختم ہونے کے بعد ہمیں 70 کروڑ ڈالر اور مل جائیں گے، جس سے ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر بھی اسٹرانگ ہو جائیں گے۔ نہ صرف یہ، اگر ہم دیکھیں ریمیٹنسز میں بھی کافی حوصلہ افزا فگرز آ رہی ہیں۔ ہماری ریمیٹنسز پچھلے سال کے مقابلے اب زیادہ ہو گئی ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری ایکسپورٹس جو ہیں اس میں بھی انکریز دیکھا گیا ہے بنسبت پچھلے سال کے، اور ہماری امپورٹس جو ہیں وہ گھٹی ہیں۔ ہمارا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا اس میں بھی کمی آ گئی ہے، اور یہ نمایاں کمی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا جو بہت بڑا بل تھا، امپورٹ بل، وہ کم ہو چکا ہے۔ تو اگر یہ ان پالیسیز کا تسلسل جاری رہتا ہے تو اس کے بعد ہمارے جو معاشی اشاریے ہیں تمام جو ہے وہ بہتری کی طرف نظر آئیں گے، مثبت اشاریہ نظر آتے رہیں گی۔ اس کے علاوہ ہماری معیشت بھی جو ہے مستحکم ہوتی جائے گی۔ لیکن سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس وقت جو پالیسیز کا تسلسل ہے، وہ یہی امید کی جاتی ہے کہ آئندہ آنے والے الیکشن کے بعد یہ جو کور پالیسیز ہیں یہ جاری رہیں گی، کیونکہ تمام اسٹیک ہولڈر سے اس حوالے سے اتفاق کیا ہوا ہے۔ تو یہ اتنا حوصلہ افزا بات ہے، خاص کر کے انویسٹرز کے لیے، کہ سب کو یہ پتا ہے کہ ہم اپنا پیسہ انوالو کرتے رہیں گے، انویسٹ کرتے رہیں گے، چاہے کوئی بھی حکومت میں آئے گا، تو جو کور پالیسیز ہیں وہ چینج نہیں ہوں گی۔ جی بہت شکریہ ضمیر عباس، آپ اس حوالے سے ہمیں تفصیلاً اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ناظرین، بیرون ملک مقیم پاکستانیوں نے گزشتہ ماہ 2.5 ارب ڈالر کی ترسیلات زر وطن بھیجیں۔ یہ ترسیلات زر ماہانہ بنیاد پر 11.5، جبکہ سالانہ بنیاد پر 9.6% زیادہ ہیں۔ رواں مالی سال کے پہلے 4 مہینوں کے دوران بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی جانب سے 8 ارب 80 کروڑ ڈالر کی ترسیلات زر وطن بھیجی گئی۔ گزشتہ ماہ سعودی عرب سے 61 کروڑ 68 لاکھ ڈالر، متحدہ عرب امارات سے 47 کروڑ 39 لاکھ ڈالر، برطانیہ سے 33 کروڑ ڈالر اور امریکہ سے 28 کروڑ 33 لاکھ ڈالر کی ترسیلات زر پاکستان بھیجی گئیں۔
नाज़रीन, फ़लस्तीन की सूरत हाल पर इस्लामी ताउन तंजीम का हंगामी सरबराही इजलास कल सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में हो रहा है। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। इस्लामी मुल्कों के सरबराहान इजलास में गजा में मुकम्मल जंगबंदी और मुतासरीन के लिए इंसानी इमदाद की फराहमी के लिए आवाज़ उठाएंगे। इजलास में फ़लस्तीन में जारी इसराइली जारियत पर तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। पाकिस्तान समेत इस्लामी ममालिक के सरबराहान इजलास में गजा में जंग के मुतासरीन के लिए इंसानी इमदाद की फराहमी और जंगबंदी के लिए आवाज़ उठाएंगे और OIC के प्लेटफॉर्म से यक ज़बां होकर आलमी बिरादरी को वाज़ेह पैगाम देंगे। रुकन ममालिक के सरबराहान की जानिब से अक़वाम आलम पर फौरी तौर पर जंगबंदी और इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों को रोकने के लिए मुश्तरका बयान आएगा। गुज़िश्ता माह 18 अक्टूबर को भी फ़लस्तीन में जारी इसराइली जारियत पर OIC की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास भी सऊदी अरब के शहर जद्दा में हुआ था, जिसके बाद एक तवील बयान में इसराइल से गजा पट्टी का मुहासरा फौरी तौर पर ख़त्म करने को कहा गया था। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ फ़लस्तीन की सूरत हाल पर इस्लामी ताउन तंजीम के हंगामी सरबराही इजलास में शिरकत के लिए आज सऊदी अरब पहुँच रहे हैं। निगरान वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी भी वज़ीर आज़म के हमरा इजलास में शरीक होंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने दफ्तर ख़ारिजा में हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग में बताया है कि पाकिस्तान सऊदी अरब की जानिब से फ़लस्तीन पर OIC के हंगामी सरबराही इजलास का खैर मकदम करता है। उन्होंने कहा कि 1 माह से ज़ायद अरसे से गजा पर इसराइली अफवाज की जाहरियत जारी है। अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल गजा में फौरी जंगबंदी के लिए अपना किरदार अदा करे और इंसानी इमदाद की फराहमी के लिए इक़दामात उठाए। तर्जुमान ने मजीद कहा कि भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में भारतीय मजालिम का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान कश्मीरी बहन भाइयों की हक़ खुदरादियत के हुसूल तक उनकी इखलाकी, सिफारती और सियासी हिमायत को जारी रखेगा। नाज़रीन, गजा में सेहूनी बर्बरियत 35वें रोज़ भी जारी है। इसराइली फोर्सेस ने हस्पतालों, रिहायशी इलाकों और पनाह गुज़ीन कैंपों को भी हदफ बना लिया है। सेहूनी तैयारों ने अल-कुद्स, अल-ओदा और गजा फ्रेंडशिप हस्पताल के अतराफ में एक बार फिर वहशियाना बमबारी की है, जबकि अल-शिफा हस्पताल पर हमले में 6 अफराद शहीद हो गए हैं। इंसानी हुकूक की बैनुल-अक़वामी तंजीम ह्यूमन राइट्स वॉच ने अस्पतालों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान सेहूनी दहशतगर्दी में शहदा की तादाद 243 हो गई है। 7 अक्टूबर से गजा में निहत्ते मजलूम फ़लस्तीनियों पर जारी बुज़दिलाना बमबारी और हमलों में शहदा की मजमूई तादाद 10,800 से तजावज़ कर चुकी है, जबकि 26,000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए हैं। 2,600 से ज़ायद अफराद ताहाल लापता हैं, जिनमें 1,400 बच्चे भी शामिल हैं। गजा में बदतरीन इंसानी बहरान भी बरकरार है। जंगज़दा इलाके में पानी के ज़खायर ख़त्म हो चुके हैं। खाने पीने की शदीद तरीन क़िल्लत, ईंधन और तिबी सहूलियात की अदम दस्तयाबी ने लाखों फ़लस्तीनियों की ज़िंदगियों को ख़तरात से दोचार कर रखा है। शुमाली गजा पर मुसलसल वहशियाना बमबारी के बायस मज़ीद 50,000 फ़लस्तीनी बेसरो सामानी के आलम में जनूबी गजा मुंतकिल होने में कामयाब हो गए हैं। ताहम अब भी लाखों फ़लस्तीनी शुमाली गजा में मौजूद हैं। अमरीका और इसराइल ने शुमाली गजा के मखसूस इलाकों में रोज़ाना 4 घंटे के लिए जंग में वक्फा किया है। अमरीकी कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन करबी ने वाशिंगटन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमलों में वक्फे का मकसद लोगों को जनूबी इलाकों की तरफ नकल मकानी में सहूलत देना है। मकबूजा मगरबी किनारे में भी फ़लस्तीनियों का कत्ल जारी है। सिहूनी फोर्सेस ने 24 घंटे के दौरान जालमाना कार्रवाइयों में मजीद 19 अफराद को शहीद कर दिया। मगरबी किनारे में 35 रोज़ जारी बर्बरियत में शहदा की तादाद 182 हो गई है, जबकि 2,500 के करीब फ़लस्तीनी शहरी ज़ख्मी हुए हैं। और नाज़रीन, सेनेट इजलास चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की सदारत में जारी है। इजलास में वक्फा सवालात में वज़ीर पार्लिमानी उमूर मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि PIA की हालत एक दिन में ख़राब नहीं हुई। गुज़िश्ता हुकूमत ने PIA की निजकारी का एक मनसूबा दिया था, जिस पर निगरान हुकूमत भी अमल पैरा है। उन्होंने सवालों के जवाब देते हुए कहा कि कई ममालिक में एयरलाइंस और रेलवेज़ हुकूमत नहीं चलाती। ये मुंतखब पार्लिमान का इस्तेहकाक है कि वो इन इदारों के बारे में फ़ैसला करे। आपको बताएं कि सेनेट इजलास चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की सदारत में जारी है। इजलास में वक्फा सवालात में वज़ीर पार्लिमानी उमूर मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा है कि PIA की जो हालत है वो एक दिन में ख़राब नहीं हुई है। गुज़श्ता हुकूमत ने PIA के निजकारी का एक मनसूबा दिया था, जिस पर निगरान हुकूमत भी अमल पैरा है। सवालों के जवाब भी दिए, जिसमें उनका ये कहना था कि कई ममालिक में जो एयरलाइंस होती हैं या जो रेलवे सिस्टम होता है वो हुकूमत नहीं चलाती। ये मुंतखब पार्लिमान का इस्तेहकाक है कि वो इन इदारों के बारे में फैसला करे।
नाज़रीन, सेनेट इजलास चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की सदारत में इस वक्त जारी है और इजलास में वक्फा सवालात में वज़ीर पार्लिमानी उमूर मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि PIA की हालत एक दिन में ख़राब नहीं हुई। गुज़िश्ता हुकूमत ने PIA की निजकारी का एक मनसूबा दिया था, उन्होंने कहा कि जिस पर निगरान हुकूमत भी अमल पैरा है। उन्होंने सवालात के जवाब देते हुए कहा कि कई मुल्कों में एयरलाइंस और रेलवेज़ हुकूमत नहीं चलाती, ये मुंतखब पार्लिमान का इस्तेहकाक है कि वो इन इदारों के बारे में फैसला करे। इजलास में वक्फा सवालात के दौरान मुर्तज़ा सोलंकी की जानिब से PIA की हालत के हवाले से कहा गया कि ये एक दिन में खराब नहीं हुई है। नाज़रीन, खबरनामे में आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, इलेक्शन कमीशन ने नई हल्का बंदियों पर दायर किए गए एतराज़ात पर समाअत का सिलसिला आज भी जारी है। इस मकसद के लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से 2 बेंच तश्कील दिए गए हैं। बेंच नंबर 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में एतराज़ात पर समाअत कर रहा है, जबकि दूसरा बेंच मेंबर सिंध नसार दुरानी की सरबराही में हल्का बंदियों पर एतराज़ात की समाअत कर रहा है। मुजफ्फरगढ़ की 35 और बखर की 15 एतराज़ात, जबकि बेंच नंबर 2 मजमूई तौर पर 48 एतराज़ात पर समाअत कर रहा है, जिनमें खैरपुर की 23 और ओकाड़ा की हल्का बंदियों से मुतालिक 25 एतराज़ात पर शामिल हैं। नई हल्का बंदियों पर इलेक्शन कमीशन को मजमूई तौर पर 1324 एतराज़ात मौसूल हुए हैं। वफाकी वज़ीर सेहत डॉक्टर नदीम जान कहते हैं कि निगरान हुकूमत मुल्क में सेहत के शोबे की तरक्की के लिए कोशां है। ये बात उन्होंने तंगी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कही। डॉक्टर नदीम जान ने कहा कि तहसील और गांव की सतह पर सेहत की सहूलियात में इजाफे के लिए कोशां हैं। अस्पताल में कार्डिक यूनिट कायम किया जा रहा है। वफाकी वज़ीर सेहत ने कहा कि सेहत के शोबे में बेहतरी के लिए आलमी इदारा सेहत के साथ इश्तराक किया जा रहा है। प्राइमरी हेल्थ केयर के 400 यूनिट्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जाएगा। निगरान वफाकी वज़ीर बराए कौमी वर्सा और सकाफत जमाल शाह ने कराची में मज़ार कायद पर हाज़िरी दी। वफाकी वज़ीर ने मज़ार पर फूल चढ़ाए और फातिहा ख़्वानी की। इस मौके पर बाबाए कौम के दराजात की बुलंदी के लिए दुआ की गई। जमाल शाह ने मेहमानों की किताब में तासुरात कलमबंद किए। उन्होंने जनूबी एशिया के अजीम कायद को शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश करते हुए लिखा कि मोहम्मद अली जिन्ना की वलफला अंगेज क़यादत ने मुल्क का क़याम मुमकिन बनाया है। बाद में मीडिया से बात करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के अफकार की तरवीज के लिए इक़दामात कर रहे हैं, जबकि हकीमुल उम्मत अल्लामा इकबाल की हयात और खिदमात पर ईरान के ताउन से फिल्म बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि मज़ार कायद के अहाते को मज़ीद खूबसूरत बनाया जाएगा। पाकिस्तान मुख्तलिफ तहजीबों और सकाफ़तों का मरकज़ और जोग्राफियाई अहमियत का हामिल मुल्क है। यहाँ सकाफ़तों की रंगारंगी ने उसे मज़ीद खूबसूरत बना दिया है। पाकिस्तान में मुतादिद मज़ाहिब के मुक़द्दस मकामात मौजूद हैं। इन मकामात को तरक्की देकर दुनिया भर के सयाहों को राग़िब करने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। मुल्क के तारीख़ी वर्से की हिफाजत तरजीहात में है। रहनुमा मुस्लिम लीग अहसन इकबाल ने कहा है कि बेल्ट एंड रोड मंसूबा पाकिस्तान के लिए अहमियत का हामिल मंसूबा है। सदर शी जिनपिंग का ये तस्वर दुनिया की बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में बड़ी तब्दीली लाया है। चीन में बेल्ट एंड रोड के समरात के मौजू पर तकरीब से खिताब करते हुए अहसन इकबाल ने कहा कि यह मंसूबा लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर के जाल के जरिए जोड़ रहा है, जिसमें दुनिया के मसाइल हल करने की सलाहियत है। रहनुमा मुस्लिम लीग का कहना था कि CPEC दोनों मुल्कों की तरक्की की सलाहियत रखने वाला मुनफरिद मंसूबा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान माशी सरगर्मियों का इलाकाई मरकज बन गया है, जबकि BRI की वजह से तरक्की की समरात मशरकी एशिया, जनूबी एशिया और वस्ती एशिया तक फैल चुके हैं। अहसन इकबाल ने कहा कि बंदरगाहों, सड़कों, रेल के जरिए एशिया, यूरोप और अफ्रीका को जोड़ने का जरिया यह मंसूबा आलमी मईशत के लिए निहायत अहम है। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को दी जाने वाली डेडलाइन गुजर जाने के बाद भी गैर कानूनी तौर पर रहने वाले अफगान बाशिंदों की अपने वतन वापसी का सिलसिला जारी है। गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर अफगान बाशिंदों को महफूज इनखला और बाइज्जत तौर पर अपने वतन वापसी हुकूमत पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है। रोजाना हजारों गैर रजिस्टर्ड अफगान शहरी बजरिया तुरखम और चमन बॉर्डर अपने वतन वापस जा रहे हैं। बड़ी तादाद में अफगान बाशिंदे तुरखम और चमन बॉर्डर पर मौजूद हैं, जो कि बखुशी अपने मुल्क वापस जा रहे हैं। KP और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद के लिए ट्रांजिट कैंप्स कायम किए गए हैं, जिनमें रोजमर्रा की तमाम सहूलियात मौजूद हैं। 9 नवंबर को 3035 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने वतन लौट गए। अफगान शहरियों में 795 मर्द, 757 खवातीन और 1483 बच्चे अपने मुल्क वापस जा चुके हैं। अफगानिस्तान रवानगी के लिए 324 गाड़ियों में 654 खानदान की अपने वतन वापसी अमल में लाई गई है। अब तक 2,10,793 गैर कानूनी तौर पर रहने वाले अफगान बाशिंदों की अपने वतन वापसी हो चुकी है।
नाज़रीन, बिजली चोरों के खिलाफ हुकूमती क्रैक डाउन का सिलसिला जारी है। निगरां हुकूमत, सिक्योरिटी फोर्सेज और अस्करी क़यादत का मुल्क की सालमियत, मईशत के इस्तेहकाम की खातिर सख्त इक़दामात लेने का फैसला किया गया है। हुकूमती ईमा पर माह सितंबर से मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया है। 29 अक्टूबर से 5 नवंबर तक के आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क भर से तकरीबन 3.42 बिलियन रुपए वसूल और 336 से जायद गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं। इस्लामाबाद और पंजाब से 1.34, सिंध से 1.40, खैबर पख्तूनख्वा से 0.49 और बलूचिस्तान से 0.19 बिलियन जुर्माना वसूल किया गया। इस्लामाबाद और पंजाब में 2383, सिंध में 146, खैबर पख्तूनख्वा में 74 FIR दर्ज हुई। ऑपरेशन के दौरान इस्लामाबाद और पंजाब से 298, खैबर पख्तूनख्वा से 11 और सिंध से 27 मुजरिमान गिरफ्तार हुए। 1 सितंबर से अब तक मुल्क भर से 36 बिलियन से जायद जुर्माना वसूल और 2,61,057 से जायद बिजली चोर गिरफ्तार हुए। निगरान हुकूमत और अस्करी क़यादत मुल्क भर से बिजली चोरी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। पूरे पाकिस्तान में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी रहेगा। लेस्को रीजन में गुज़िश्ता 24 घंटे में मजीद 175 बिजली चोर पकड़े गए, जबकि 110 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। तर्जमान लेस्को के मुताबिक उनको बिजली चोरी की मद में 1,04,16,082 रुपए के जुर्माने आयद किए गए हैं। बिजली चोरों के खिलाफ जारी मुहिम के दौरान अब तक 24,693 मुलजिमान बिजली चोरी में मुलव्विस पाए गए, जिनमें से 12,242 मुलजिमान को गिरफ्तार, जबकि 24,447 के खिलाफ FIRs की दरखास्तें जमा करवाई गई हैं। बिजली चोरों को अब तक यूनिट डिटेक्शन की मद में 1.92 करोड़ रुपए से जायद का जुर्माना आयद किया गया है। उधर कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। तर्जमान कैस्को के मुताबिक बिलों के 288 कनेक्शंस बिल्स की अदम अदायगी पर मुनक़दा, जबकि कानूनी कार्रवाई के लिए 1,386 दरखास्तें दी जा चुकी हैं। बिजली चोरों को यूनिट्स डिटेक्शन की मद में 26 करोड़ 32 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया है। टेक्शन और जुर्माने की मद में 22 करोड़ 24 लाख रुपए भी वसूल किए जा चुके हैं। कैस्को ने अब तक 75,000 नादहिंदा सार्फिन से 1,45 करोड़ 48 लाख रुपए बिजली बिलों के बकायाजात की मद में भी वसूल किए हैं। मैपको रीजन में बिजली चोरों और डिफॉल्टर्स के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। एक रोज में मजीद 57 सार्फिन बिजली चोरी करते हुए पकड़े गए हैं। 43 नए मुकदमात का इंदराज और 11 बिजली चोरों को मौके से गिरफ्तार करके 45,30,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया है। दूसरी जानिब वाजिबात वसूल करने के लिए नादहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन में 1 करोड़ रुपए से जायद की रिकवरी की गई है। नाज़रीन, शिमाली वज़ीरिस्तान में पाक फौज के ताउन से मोबाइल हेल्थ यूनिट का क़याम अमल में लाया गया है। शिमाली वज़ीरिस्तान में पाक फौज के ताउन से MCPL ने 4 मोबाइल हेल्थ यूनिट्स कायम किए हैं। मोबाइल हेल्थ यूनिट्स को CSR के तहत तैयार किया गया है। मोबाइल हेल्थ यूनिट्स में मरीजों की सहूलत के लिए लैब टेस्ट सिस्टम, ECG, अल्ट्रासाउंड और ब्लड प्रेशर के सिस्टम से लैस किया गया है। मरीजों की बेहतर इलाज मुआलजे के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की टीम, जिसमें लेडी डॉक्टर समेत पैरामेडिकल स्टाफ मौजूद होता है। हेल्थ यूनिट्स का आगाज शिमाली वज़ीरिस्तान के गर्दई और शेवा में किया गया, जिसे बाकी इलाकों में पहुंचाया जाएगा। हेल्थ यूनिट्स का मकसद इलाके के मकीनों को उनके घरों की दहलीज पर मयारी और ज़रूरी तिबी सहूलियात की फराहमी है। हेल्थ यूनिट्स अब तक मजमूई तौर पर 402 मरीजों को, जिसमें 129 मर्द, 77 खवातीन और 96 बच्चे शामिल हैं, को तिबी सहूलियात फराहम कर दी गई हैं। इलाज मुआलजे के अलावा लोगों को मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों से बचाव और एहतियाती तदाबीर के साथ मुफ्त दवाइयाँ भी दी जाती हैं। हेल्थ यूनिट्स के क़याम से इलाके के मिशरान ने पाक फौज और MCPL का शुक्रिया अदा किया। शहदाए पाकिस्तान को सलाम। पाक फौज के बहादुर सपूतों की कुर्बानियों की पूरी कौम मोतरफ है। शहदा को याद करते हुए नम आंखों से उनके लवाहिकीन ने अपने जज्बात का इजहार करते हुए क्या कहा, आइए आपके साथ शेयर करते हैं। बैठे हुए अक्सर मुझे कई दफ़ा इसने बात की कि मामा मेरी ज़िंदगी ना कम है। हल्का सा डांटा, मैंने कहा ऐसे नहीं बेटा कहते। मैं उसकी बात नहीं सुनती थी। मैं कहती ऐसी बातें मत करो मेरे सामने। मम्मा आप देखना मैंने बूढ़ा नहीं होना, मुझे बूढ़े होने से ना बहुत खौफ आता है। मेरी धरती ये मेरी ये माए। ताकि हम अगले महीने जब उम्रे के लिए हम लोग जाएंगे तो सफ़ेद सूट हम लोग लेके जाते हैं। मेरी धरती ये मेरी ये माए। मेरी धरती ये मेरी ये माए। मुझे
टी वी में वो लिखा हुआ था कि केमिस्ट्री के प्रोफेसर हामिद हुसैन शहीद हुआ था। उसकी छाती से कपड़ा हटा। जब मैंने उसके लेफ्ट साइड को खून आलूद देखा तो मैंने कहा इरफान तुम्हें सलूट, ज़बरदस्त आए हो यार, बहुत अच्छे। उसके ऊपर उसका ब्लड लगा हुआ था, वो एक शहीद का ब्लड था, वो एक माँ के बेटे का ब्लड था। दो इंसान आया स्कूटर में, बस 2 गोलियां लगा दिया, बस मोटर में बेचारा सोए का सोए रह गया। और उसके बाद ऑफिशियली इन्होंने 8 बजे आके ईशा के बाद अनाउंस किया था कि ही इज नो मोर। तुझे याद करेगा, तुझे याद करे। नाज़रीन, मकबूजा जम्मू कश्मीर की कशीदा सूरत हाल की बात करें तो काबिज भारतीय फोर्सेस की तरफ से रियासती दहशतगर्दी का सिलसिला जारी है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज फौजियों ने ताज़ा कार्रवाई के दौरान जिला शुपियां में मजीद एक बेगुनाह कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया। मिसर अहमद डार नामी नौजवान को महासिर और तलाशी की कार्रवाई की आड़ में एक जाली मुकाबले में शहीद किया। भारतीय फौजियों, पैरामिलिट्री और पुलिस के अलावा तहकीकाती इदारे NIA और SIA के एहलकारों ने श्रीनगर, इस्लामाबाद, पुलवामा, शुपियां और जम्मू अजला में तलाशी की कार्रवाई और घरों पर छापों के दौरान मुतादिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम का काला कानून और UAPA लागू कर दिया गया है। काबिज हुक्काम ने जिला इस्लामाबाद के इलाके बीजबहाड़ा में एक कश्मीरी की दुकान जब्त कर ली। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने मकबूजा इलाके में भारत की बढ़ती हुई रियासती दहशतगर्दी पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। बयान में कहा गया है कि भारतीय मजालिम कश्मीरियों को सर तस्लीम खम करने पर मजबूर नहीं कर सकते, वो अपनी जद्दोजहद आज़ादी को मंतकी अंजाम तक जारी रखेंगे। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा पर जोर दिया कि वो मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी बनकर आने और तनाज़ कश्मीर के हल के लिए भारत पर दबाव डाले। जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी ने भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर को मकतलगाह में तब्दील करने पर अफसोस का इजहार किया है। बयान में कहा गया है कि काबिज फोर्सेस ने बेगुनाह कश्मीरियों को जाली मुकाबलों में शहीद कर दिया है। नाज़रीन, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री भी मुसलमानों के खिलाफ बुग़्ज़ में पेश है। बॉलीवुड में यके बाद दीगरे मुसलमानों को मनफी जाहिर करने वाली फिल्मों की भरमार है। मोदी के इक़्तिदार में आने के बाद से अब तक 37 मुसलमान मुखालिफ फिल्में रिलीज हो चुकी हैं। मुतनाज़ा तरीन मुसलमान मुखालिफ फिल्मों में कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी और लिपस्टिक अंडर माई बुर्का शामिल हैं। रवां साल अब तक 6 मुसलमान मुखालिफ फिल्में रिलीज हो चुकी हैं। फिल्म में गोधरा, मिशन मजनू और 72 हूरें भी शामिल हैं। 2024 के इंतखाबात से कबल 20 मुसलमान मुखालिफ फिल्में रिलीज होना मुतवक्के हैं। 2014 से कबल मुसलमान मुखालिफ फिल्मों की तादाद 17 थी और ज्यादातर फिल्मों में मुसलमानों को विलन, दहशतगर्द या किसी माफिया का हिस्सा दिखाया जाता है। बरे-सगीर की मुस्लिम तारीख पर बनने वाली फिल्मों में भी मुसलमानों को विलन और मनफी किरदारों के तौर पर पेश किया जाता है। पानीपत, पद्मावत और टीपू में हकाइक के बरक्स मुसलमानों को विलन के तौर पर जाहिर किया गया। फिल्म टीपू में मज़ाक़-ए-ख़ेज़ दावा किया गया कि शेर मसूर ने 40 लाख हिंदुओं को जबरन मजहब तब्दील करने पर मजबूर किया। फिल्म में यह भी दावा किया गया कि टीपू सुल्तान ने 8000 मंदिर तबाह जबकि 1 लाख से जायद हिंदुओं को पाबंदे सलासल किया। इसके बरक्स अधिपुरुष, रामायण और बाहुबली जैसी अफसानों फिल्मों में हिंदुओं के हीरो के तौर पर पेश किया जाता है। मोदी की चापलूसी में बॉलीवुड ने मोदी पर भी फिल्म बना डाली। फिल्म गोधरा में तो गुजरात फसादात का मलबा ही मुसलमानों पर डाल दिया गया। अनूप राघव के मुताबिक बॉलीवुड और मोदी सरकार के दरमियान मुश्तरका मफादात का रिश्ता है। सियासी फवाइद के लिए मोदी सरकार कई मुसलमान मुखालिफ फिल्मों पर टैक्स की छूट भी देती है। 2019 के इंतखाबात से कबल भी बीजेपी ने बॉलीवुड को मुसलमान मुखालिफ फिल्में बनाकर सियासी फवाइद के लिए इस्तेमाल किया। इकोनॉमिस्ट के मुताबिक कश्मीर फाइल्स और केरला स्टोरी को टैक्स छूट और बीजेपी की तरफ से सियासी सरपरस्ती भी हासिल थी। नाज़रीन, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ फ़लस्तीन की सूरत हाल पर इस्लामी तावन तंजीम के हंगामी सरबराही इजलास में शिरकत के लिए 3 रोज़ा दौरे पर रियाद के लिए रवाना हो रहे हैं। वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ फ़लस्तीन की सूरत हाल पर OIC सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ दौरे के दौरान मुख्तलिफ सरबराहान ममलकत से मुलाकात भी करेंगे। हमारे साथ असद यार खान मौजूद हैं, मज़ीद तफसीलात उन्हीं से लेते हैं। जी असद यार खान, आगाह कीजिएगा। जी, वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ सऊदी अरब के लिए रवाना हो गए हैं। रियाद में OIC का हंगामी सरबराही इजलास हो रहा है और सऊदी अरब ने इस इजलास को बुलाया है और वज़ीर आज़म जो है
اس اجلاس میں شرکت کریں گے۔ OIC کا سربراہ اجلاس فلسطین کی صورتحال پر ہو رہا ہے، غزہ میں جو بگڑتی ہوئی صورتحال ہے، انسانی مظالم جاری ہیں، اس حوالے سے ہو رہا ہے، اور وزیر اعظم اس اجلاس میں پاکستان کا موقف پیش کریں گے، خاص طور پر جو اسرائیل کی بھرپور مظالم جاری ہیں غزہ میں، اس کی پرزور مذمت کی جائے گی، اور ساتھ ساتھ جنگ بندی کی کا مطالبہ ہوگا، اور جو انسانی بنیادوں پر امداد کی فراہمی کو یقینی بنانے کے حوالے سے بھی اقدامات اٹھانے کی عالمی برادری سے اپیل کی جائے گی۔ پاکستان کا یہ موقف رہا ہے کہ جو مسئلہ فلسطین ہے وہ اسلامتی کونسل کی قراردادوں اور OIC کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جائے۔ سعودی عرب کے پاس اس وقت چیئر ہے OIC کی، اور اس حوالے سے ہی سعودی عرب نے یہ اجلاس بلایا ہے انتہائی اہم موقع پر، اور تمام جو عالم اسلام کے رہنما ہیں اس سربراہ اجلاس میں شرکت کریں گے، جس سے ایک دنیا کو بھی ایک واضح پیغام جائے گا کہ غزہ کی جو صورتحال ہے اس کے اوپر آنکھیں بند نہیں۔ جی بہت شکریہ اسد یار خان آپ کا۔ ناظرین، نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ فلسطین کی صورتحال پر OIC اجلاس میں شرکت کے لیے سعودی عرب کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی بھی ان کے ہمراہ ہیں۔ ناظرین، خبرنامے میں آگے بڑھتے ہوئے کچھ موسم کی صورتحال کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں موسلادھار بارشوں کے بعد نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا ہے۔ صورتحال کے پیش نظر ریسکیو راولپنڈی نے الرٹ جاری کر دیا ہے، اور ریسکیو اہلکاروں کو کٹاریاں، گوالمنڈی اور نالا لئی کے اطراف دیگر نشیبی علاقوں میں تعینات کیا گیا ہے۔ موسم کے حوالے سے مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ السلام علیکم، خبر آبے میں ویدر اپڈیٹ لیے میں آپ کے ساتھ عبد القدیر۔ ناظرین، اسلام آباد اور راولپنڈی میں موسلادھار بارش کے بعد نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا۔ شام سے شروع ہونے والی بارش وقفے سے اب تک جاری ہے۔ اس صورتحال کے پیش نظر ریسکیو 1122 راولپنڈی نے الرٹ جاری کر دیا ہے۔ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ریسکیو اہلکاروں کو کٹاریاں، گوالمنڈی اور نارالئی کے اطراف دیگر نشیبی علاقوں میں تعینات کیا گیا ہے۔ بارش کے دوران ریسکیو اہلکار ان مقامات پر مسلسل اپنے فرائض کی انجام دہی کے لیے موجود رہیں گے۔ شہری کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں فوری طور پر ریسکیو ہیلپ لائن 1122 پر اطلاع دے سکتے ہیں۔ محکمہ موسمیات نے پہلے ہی جڑواں شہروں سمیت دیگر علاقوں میں موسلادھار بارشوں کی پیشگوئی کر رکھی تھی۔ اور عظیم صوبائی دارالحکومت لاہور میں صبح سویرے ہونے والی بارش سے اسموگ کی شدت میں کمی ہوئی اور موسم خوشگوار ہو گیا۔ موسم کی صورتحال کے بارے میں مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے نوید حیات سے۔ نوید، آگاہ کیجیے گا لاہور میں کیا صورتحال ہے موسم کی؟ جی بالکل، صبح سویرے ہونے والی بارش کے بعد شہر لاہور کا موسم جو ہے وہ انتہائی خوشگوار ہو چکا ہے، کیونکہ موسم سرما کی یہ پہلی بارش تھی جس کے بعد شہر میں آج سے سردی کا جو ہے باقاعدہ طور پر آغاز ہو چکا ہے۔ گزشتہ چند ہفتوں سے شہر لاہور کے باسیوں کو اسموگ نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، جس کے باعث شہریوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ آنکھوں میں جلن اور سانس لینے میں دشواری جو ہے، اس جیسی مختلف جو بیماریاں ہیں وہ جنم لیتی دکھائی دے رہی تھی۔ حکومت پنجاب نے اس اسموگ پر قابو پانے کے لیے جزوی لاک ڈاؤن کا نفاذ کیا، اور لاہور سمیت پنجاب کے جو دیگر 8 اضلاع ہیں وہاں پر جزوی لاک ڈاؤن کا نفاذ کیا گیا ہے۔ ہفتہ اور اتوار جو ہے، ان 2 دنوں میں تمام شہر کی مارکیٹیں اور تمام جو مین مراکز ہیں، تعلیمی ادارے ہیں اور جو سرکاری اور نجی ادارے ہیں ان کو بند رکھا جائے گا تاکہ شہریوں کو اسموگ سے بچایا جا سکے۔ جو طبی حکام ہیں ان کا کہنا یہی ہے کہ شہری جو ہے غیر ضروری سفر نہ کریں، اگر سفر کرنا بہت ضروری ہو تو ماسک کا اور جو سن گلاسز ہیں ان کا استعمال کریں تاکہ اسموگ سے بچا جا سکے۔ ناظرین، پنجاب حکومت کی جانب سے اسموگ سے پیدا شدہ موجودہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے ننکانہ صاحب میں بھی اسمارٹ لاک ڈاؤن لگا دیا گیا ہے۔ ذیلی انتظامیہ کی طرف سے اسموگ میں کمی لانے کے لیے بھرپور اقدامات کیے گئے ہیں۔ مزید جانتے ہیں ننکانہ صاحب سے ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ PTV نیوز جاوید احمد معاویہ۔ جاوید، آگاہ کیجیے گا اسمارٹ لاک ڈاؤن کے دوران لگائی گئی پابندیوں پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے کیا اقدامات کیے گئے ہیں؟ جی بالکل، ننکانہ صاحب بھی ان اضلاع میں شامل ہے جہاں پنجاب حکومت کی طرف سے اسموگ کی وجہ سے اسمارٹ لاک ڈاؤن جو ہے وہ لگایا گیا ہے۔ ننکانہ صاحب اور اس کی 3 تحصیلوں میں تمام سرکاری اور نجی تعلیمی ادارے اور دفاتر بند ہیں۔ ضلع بھر میں آج عام تعطیل ہے اور لوگوں کی آمد و رفت بہت کم ہے۔ ذیلی انتظامیہ کی طرف سے کل اور پرسوں 2 روز کے لیے تمام کاروباری مراکز، ریسٹورنٹس اور دکانوں کو بند رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے۔
स्मार्ट लॉकडाउन के दौरान लगाई गई पाबंदियों पर अमल दरामद का जायजा लेने के लिए खुसूसी टीमें बनाई गई हैं जो तमाम छोटे बड़े शहरों और कस्बों में जाकर जो है वो जायजा ले रही हैं और किसी भी खिलाफ वर्जी की सूरत में मुतल्लिका अफराद के खिलाफ फौरी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। ज़ली इंतज़ामिया की तरफ से लोगों से अपील की गई है कि वो बिला ज़रूरत घरों से ना निकले और स्मोक से पैदा शुदा मौजूदा सूरत हाल से निपटने के लिए हुकूमती इक़दाम का जो है वो साथ दें। जी मानसेरा के मैदानी इलाकों में बारिश जबकि बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला आज दूसरे रोज़ भी वक्फे से जारी है जिससे सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। सियाहती मकामात सिरीपाई, नारान, झील, सैफुल मलूक, जलखड़, बटाकुंडी में बर्फबारी वक्फे से जारी है। नारान, जलखड़ और बटाकुंडी में अब तक 2 से 5 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है जबकि नारान के पहाड़ों ने बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। बर्फबारी से बाबूसर टॉप रोड पर जाने वाली हर किस्म की गाड़ियों पर पाबंदी लगा दी गई है जबकि गिलगित बल्तिस्तान जाने वाले मुसाफिरों को शाहराए कराकोरम इस्तेमाल करने की हिदायत की गई है। और महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश जबकि बालाई इलाकों में सर्द और मतला जुज़वी तौर पर अब्र आलूद रहेगा। ताहम शिमाल मशरकी पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ मजीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की तवक्को है जबकि पंजाब के मैदानी इलाकों में रात और सुबह के औकात में धुंध का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, इस्लामाबाद और बालाई वस्ती पंजाब में अक्सर मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हुई। इस दौरान चंद मकामात पर जालाबारी भी हुई। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत लह -2 और कालाम में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये थी अब तक की मौसम की सूरत हाल। बहुत शुक्रिया कदीर, आप मौसम के हवाले से अपडेट कर रहे थे। नाज़रीन, अब कुछ मजीद खबरों में आपको बताएंगे। पंजाब हुकूमत की जानिब से लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों के जुज़वी लॉकडाउन में तब्दीली कर दी गई है। हुकूमत पंजाब ने 8 अजला में मार्केट्स आज खोलने की इजाज़त दे दी है। नए तरमीम शुदा नोटिफिकेशन के मुताबिक शॉपिंग मॉल समेत मार्केट्स आज खोली जा सकेंगी जबकि हफ्ते और इतवार को बंद रहेंगी। फैसले का इतलाक लाहौर, ननकाना साहिब, शेखुपुरा, कसूर में होगा। फैसले का इतलाक गुजरावाला, नौरोवाल, हाफिजाबाद, सियालकोट पर भी होगा। आज शॉपिंग मॉल्स, मार्केट्स, रेस्टोरेंट्स, सिनेमास और जिम्स खुले रहेंगे। नाज़रीन, यौम इकबाल के हवाले से बहावलपुर में जारी 3 रोज़ा तकरीबात इख्तिताम पजीर हो गईं। इन तकरीबात में कलाम इकबाल के साथ साथ इकबाल की शख्सियत और उनके अफकार पर भी खुसूसी रोशनी डाली गई। मज़ीद तफसील हमारे नुमाइंदा अब्दुल्ला मुख्तार की खुसूसी रिपोर्ट में देखिए। यौम इकबाल की 3 रोज़ा तकरीबात के सिलसिले में पंजाब आर्ट्स काउंसिल के ज़ेर एहतमाम कलाम इकबाल का एहतमाम किया गया। डायरेक्टर आर्ट्स काउंसिल सज्जाद हुसैन, मसूद साबिर और दीगर मुकर्रीन ने फिक्र इकबाल पर सैर हासिल गुफ्तगू की। इस मौके पर बहावलपुर के नामवर गुलकारों ने कलाम इकबाल को उम्दा तरीके से पेश किया। कभी है हकीकत मुंतज़र नज़र आ लिबासे मजाज में सनम खदा शुक्र है अल्लाह का कि इस तरह की महफिलें भी हमारे यहाँ हो रही हैं जिनसे हम अपने दर्द को पहचान सकते हैं और फिर उसका मदावा भी कर सकते हैं। हम इकबाल के पैगाम को मुख्तलिफ तरीक़ों से पहुँचाएँ, इसलिए हमने 3 रोज़ में मुख्तलिफ तकरीबात का एहतमाम किया। बहावलपुर माशाअल्लाह बहुत खुशकिस्मत है कि एक मुतहर्रिक यहाँ सोसाइटी मौजूद है जिसमें मुख्तलिफ पहलुओं से अल्लामा इकबाल की शायरी, उनके फन और उनकी फलसफे के ऊपर गुफ्तगू हुई। उर्दू घर के ज़ेर एहतमाम मौजूदा सूरत हाल में इकबाल की मावनियत के उन्वान से खसूसी सेशन का एहतमाम किया गया। माहिर इकबालियात अहमद जावेद ने कहा कि मौजूदा दौर में फिक्र इकबाल की बहुत ज्यादा जरूरत है। दीगर मुकर्रीन ने कहा कि इकबाल की तालीमात को मुख्तलिफ अंदाज में फैलाना काबिल तहसीन है। मौजूदा दौर में इकबाल के फलसफा खुदी पर अमल पैरा होकर नौजवान तरक्की की मनाजिल तय कर सकते हैं। अब्दुल्ला मुख्तार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, बहावलपुर। बेलारूस में यौम इकबाल के मौजू पर पाकिस्तानी सिफारत खाने में स्टेट सानी यूनिवर्सिटी के इश्तराक से तकरीब का इनेकाद किया गया। पाकिस्तानी सफीर सजाद हैदर खान ने तकरीब से खिताब करते हुए क़याम पाकिस्तान में शायर मशरिक़ के किरदार को उजागर किया। तकरीब में तलबा ने रूसी और अंग्रेजी दोनों ज़बानों में अल्लामा मोहम्मद इकबाल और अफसाना निगार फैज़ अहमद फैज़ की शानदार नज़्में सुनाकर अपनी महारत का मुजाहरा किया और पाकिस्तानी मूसीकी पर रक्स भी पेश किया। पाकिस्तानी सिफारत खाने ने लजीज जायकों के साथ पाकिस्तानी दस्तरखान भी मुतारिफ करवाया जिसे खूब पसंद किया गया।
कोयटा जोब जीआई खान N50 कौमी शाहराह को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। तर्जुमान NHA के मुताबिक N50 धानासर शिरानी की पहाड़ी सिलसिले में लैंड स्लाइडिंग की वजह से 6 नवंबर की सुबह को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई थी। NHA और बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की मुकामी इंतजामिया ने मुश्किल तरीन हालात में दिन रात काम करके इस अहम कौमी शाहराह को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दिया है। N50 कोयटा योब DI खान कौमी शाहराह बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अलावा पंजाब के लिए भी मुसाफिर और माल बरदार ट्रैफिक के लिए इस्तेमाल होती है। और नाज़रीन, अभी आपको बताएं कि अज़ान जुमा का वक्त हुआ जाता है, ये सुनने की सआदत हासिल करते हैं। नाज़रीन, दुनिया भर में आज साइंस का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन के अगराज़ व मकासद बता रहे हैं कराची से हमारे नुमाइंदे ज़मीर अब्बास अपनी इस रिपोर्ट में। मौजूदा टेक्नोलॉजी का दौर साइंस की मरहून मिन्नत है। साइंस ने तिब, तालीम और दिफा समेत तमाम शोबे जिंदगी में इनकलाब बर्पा कर दिया है। नई साइंसी इजादात और जदीद टेक्नोलॉजी दुनिया को तिलिस्माती तौर पर तब्दील कर रही है। साइंस और टेक्नोलॉजी का मुआशरती तरक्की में किरदार इंतहाई अहम है, लेकिन एक मकतबा फिक्र साइंस के मनफी असरात पर भी तनकीद करता नजर आता है, जैसा कि जापान में एटम बम का गिराना, आतिशी असले का इस्तेमाल और दीगर ऐसे कई वाकयात हैं जो कि साइंस के मनफी पहलुओं को उजागर करते हैं। इस दिन को मनाने का मकसद साइंस की बदौलत सहूलत का इतराफ करना और इसके मनफी असरात को ज़ायल करके इसे अमन और तरक्की के फरोग के लिए इस्तेमाल करना है। इस बार इस दिन के लिए साइंस पर एतमाद पैदा करने का उन्वान रखा गया है। साइंस में एतमाद बढ़ाने का मकसद साइंस पर मबनी पॉलिसी फैसलों और इनके इतलाक के लिए मुआशरे की हिमायत को तक़वियत देना है। आज का इंसान साइंस की इजादात का इस कदर आदी हो चुका है कि इनके बिना एक दिन भी गुजार नहीं सकता। लेकिन यहाँ ये अमर काबिल जिक्र है कि साइंस बजाते खुद बुरी शे नहीं है, इसका गलत इस्तेमाल इंसान के हाथ में है। साइंस और टेक्नोलॉजी का मुस्बत इस्तेमाल जदीद दौर के तकाजों में तरक्की की राहें हमवार करने के लिए बेहद जरूरी है। ज़मीर अब्बास नकवी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक अहमद खान कहते हैं कि ख़वातीन हमारी आबादी का निस्फ हिस्सा हैं, उन्हें मरकजी धारे में लाकर माशी अशारिये बेहतर किए जा सकते हैं। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने मुजफ्फराबाद में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस विमेन विंग के कन्वेंशन से खिताब के दौरान किया। साबिक वज़ीर आज़म का कहना था कि ख़वातीन के मसाइल के हल और उनकी फलाह व बहबूद के लिए ज़रूरी है कि उन्हें सियासत समेत तमाम शोबों में आगे लाया जाए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कश्मीरियों का सबसे बड़ा हिमायती और वकील है। कश्मीरी अवाम ममलकत खुदादाद पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। नाज़रीन, सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में 5 रोज़ा फूड कल्चर फेस्टिवल जारी है, जिसमें पाकिस्तान समेत 35 से ज़ायद ममालिक ने मुनफरिद अंदाज में खुश जायका खानों और सकाफत के स्टॉल्स लगाए हैं। पाकिस्तानी स्टॉल्स का इफ्तिताह करते हुए पाकिस्तानी सफ़ीर अहमद फारूक ने कहा कि फेस्टिवल की बदौलत मुल्क की सकाफत और खानों को मुतारिफ करवाने का ये बेहतरीन मौका है, जबकि पाकिस्तानी स्टॉल से हासिल होने वाली आमदनी को फ़लस्तीनी आवाम के लिए किंग सलमान रिलीफ फंड में जमा करवाया जाएगा। फूड फेस्टिवल में एशियन और वेस्टर्न ममालिक के सकाफती फनकार शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा भी कर रहे हैं। और लोक वर्सा इस्लामाबाद में 10 रोज़ा फोक फेस्टिवल अपनी तमाम तर रानाइयों के साथ जारी है, जिसमें मुल्क भर की सकाफत के रंग नुमाया हैं। तफसील शाहीन सफ्तर से। मेले के 7वें रोज पुतली तमाशा शो का इनेकाद किया गया, जिसे देखकर बच्चे, बूढ़े, नौजवान खूब महजूज हुए। खुसूसन बच्चों को पुतली तमाशा बहुत पसंद आया। पहली मर्तबा लोग मेले में पुतली तमाशा का इनेकाद किया गया। मुझे पॉपेट शो बहुत अच्छा लगा और ये बार बार होना चाहिए। मुझे पपेट शो वाली स्टोरी बहुत अच्छी लगी। मुझे पपेट शो बहुत पसंद लगा। अच्छा लगा और मैं यही देखने आई थी। और मुझे पपेट शो बहुत अच्छा लगा। हमारा बहुत अरसे का काम है, हमें बहुत दुनिया पसंद करती है। जब कोई चीज नहीं थी, ना रेडियो था, ना टीवी था, ना फिल्म था, कोई चीज नहीं था, जब का हमारा ये खेले गया। लोग मेले में पुतली तमाशे के जरिए बच्चों के लिए मुख्तलिफ कहानियाँ पेश की गई, जिससे बच्चे खूब लुत्फानंदोज हुए। शाहीन सफदर, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, खेलों की कुछ मज़ीद खबरें भी जानेंगे।